कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मिलने के बाद इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। अरे रोकिए, आप रोकिए, कैसे आएंगे भैया? से थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता चुनाव आयोग में मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस की मांग है कि 2 विधायकों के वोट कैंसिल किए जाएं। गुजरात से राज्यसभा सांसदों के चुनाव का ये मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस की ये मांग है कि 2 विधायकों के वोट कैंसिल किए जाएं। बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से वो मुखातिब हुई और उन्होंने साफ कहा कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद उसको खारिज करने की मांग नहीं की जा सकती। बड़ी खबर ये है कि अहमद पटेल राज्यसभा में इस बार आते हैं कि नहीं, ये पेच फंसा हुआ है और इसलिए सीधे सीधे कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का मामला है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं अहमद पटेल। राजनीतिक रणनीतियां कई उन्होंने बनाई हैं, लेकिन अपने राज्यसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीति कितनी कारगर हुई ये पता लग पाएगा जब राज्यसभा चुनाव के आंकड़े सामने आते हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग में मिलने पहुंचे। उनकी मांग यह है कि 2 विधायकों के जो वोट हैं वो कैंसिल किए जाएं। उन दोनों विधायकों ने अपना मत जाहिर किया था, सार्वजनिक किया था, जिसके सीधे सीधे मायने ये कि उन दोनों विधायकों के वोट खारिज होने चाहिए। रणदीप सुरजेवाला और पी चिदम्बरम इस वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभी तक वोटों की गिनती का मामला अटका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की मांग है। Please keep quiet for a minute. Please keep quiet for a minute, I said. Please keep quiet for a minute. Okay. We have pointed out to him there is videograph evidence to show that the ballot papers of 2 Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person of the party. That is a violation of the conduct of election rules read with a circular of the Election Commission. There are precedents where such ballot papers have been rejected. The most recent precedent was in Haryana on June 11, 2016. On June 11, 2016, in the election to the Rajya Sabha, a Congress MLA's vote was rejected on the ground that the ballot paper had been seen by a person other than the authorized person. There was another precedent in 2000 in Rajasthan where an independent MLA's ballot paper was rejected on the ground it was seen by a person other than the authorized person. In Gujarat, there is ample evidence to show that 2 votes cast by Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person. In fact, our reports are at least 2 or 3 persons have seen the ballot paper. Those 2 ballot papers went in favor of the BJP, which is why unauthorized persons of the BJP saw those ballot papers. Those 2 must be rejected. Election Commission cannot follow anything except its own precedent of June 11, 2016. Therefore, we have impressed upon the Election Commission that those 2 ballot papers must be rejected. Our reports from Gujarat are the returning officer is rightly awaiting the instructions of the Election Commission. Let me make one thing clear. The only constitutional authority is the Election Commission. Conduct and superintendence of election is vested in the Election Commission. The returning officer is only an officer appointed by the Election Commission to carry out certain acts. The ultimate decision is always the decision of the Election Commission. We have told the Election Commission must take the decision.
the Election Commission must reject these two ballot papers as it did in Haryana on June 11, 2016. These two ballot papers must be rejected and the counting must be completed. Why wait till the nth hour to red flag this, sir? They cast their ballot at about 9 a.m. this morning at 3:30. That's the BJP argument, line of argument, sir. It is a completely irrelevant argument. One assumes that when the counting starts, they will review the videos and reject the ballot paper. It is only when they refuse to act according to law, refuse to act according to the circular, refuse to act according to the rules, the question of bringing to the notice of Election Commission arises. One assumes Election Commission, when it reviewed the video, would have rejected it. Why should I assume they won't act according to law? It's only when they delay acting, only when they delay a decision, we bring it to the notice of the Election Commission. Sir, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों का डेलीगेशन आया था. What the BJP is alleging is this is because you anticipate Mr. Patel is losing in Gujarat and hence you decided to pull this out of your hat. That is an irrelevant question. Question is, are these two ballot papers liable to be rejected or not? If the BJP is any conscience, it will say, follow the precedent of June 11, 2016 and reject these two ballot papers. The question is, are these ballot papers liable to be rejected? If they are liable to be rejected, they must be rejected and the counting must be completed. Did you come face to face with the BJP delegation? Did you come face to face with the BJP delegation? The delegation of the BJP Just wait. गहलोत जी, जी, सर अभी आप लोगों की मुलाकात करके ऑन करो, एक बार ऑन करके ऑन करो. हाँ, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जी चुनाव आयोग को मिला और हमने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर से दरख्वास्त की कि दो ऐसे विधायक हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी वोट अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाई. इस आधार पर रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और चुनाव आयोग के सर्कुलर के तहत ये दोनों वोट खारिज की जाएं, क्योंकि यही नियम और कानून है और यही जून 11, 2016 को हरियाणा में और 2000 में इसी प्रकार से राजस्थान में वोट दिखाने और वोट की सीक्रेसी लीक करने की वजह से वोट खारिज कर दी गई थी. हमने चुनाव आयोग को ये भी बताया कि संविधान के तहत केवल और केवल ये चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून की अनुपालना करें. रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी को ओछे हथकंडे अपनाने बंद करने चाहिए. हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया, आदरणीय गहलोत साहब ने और सब नेताओं ने, कि इन दोनों वोट्स को रिजेक्ट किया जाए, कानून की अनुपालना हो, संविधान की अनुपालना हो और संविधान के अनुरूप निर्णय हो. चुनाव आयोग ने पूरी बात सुनकर यह आश्वासन दिया है कि वो हर हालत में देश के संविधान, देश के कानून और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए सर्कुलर और सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वायलेट करने पर वोट खारिज किए जाने वाले सर्कुलर को लागू करेंगे. लेकिन अभी 1 घंटे पहले आप लोग आए थे, अब दोबारा जो है तुरंत आप लोग आना पड़े, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण अपने पदों का दुरुपयोग कर नाजायज तरीके से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं. देश के कानून मंत्री जब आकर नाजायज प्रभाव डालने की कोशिश करें, देश के कैबिनेट मंत्री जब नाजायज प्रभाव डालने का प्रयास करें, झूठ बोलकर, मिथ्या प्रचार करके, गलत बात कहकर पूरे मामले को भटकाने का प्रयास करें, तो सच का आईना दिखाने और सच्चाई की वकालत करने के लिए कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल आया. हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि वो कानून और संविधान के अनुरूप और चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर के अनुरूप, जिसमें सीक्रेसी और बैलेट वायलेट करने पर रिजेक्ट करने का प्रावधान है, वो उसके अनुरूप निर्णय करेंगे. बीजेपी दोबारा आई हुई है, आप जो बाहर निकले बीजेपी पर, वो कितनी भी झूठ बोल लें, वो कितना मिथ्या प्रचार और षड्यंत्र करें, परंतु झूठ हारेगा गुजरात में, सच जीतेगा. बापू की धरती पर
कभी भी झूठ जीत नहीं सकता। बापू की धरती पर हमेशा सत्य की जीत हुई और एक बार फिर सत्य की जीत। चुनाव आयोग से क्या बातचीत हुई है? अरुण जेटली तो अहमद पटेल राज्यसभा का रास्ता तय करेंगे कि नहीं, इस बात को लेकर अभी लड़ाई जारी है। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करके बाहर आए और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने ही दिए गए पहले के फैसले पर अमल करते हुए कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट खारिज करे, उसे रद्द करे। हरियाणा में जून 2016 में कांग्रेस के एक एमएलए का वोट खारिज हुआ था और वो इसी बात पर कि जिन लोगों को इस बैलेट पेपर को देखने की इजाजत है, उनके अलावा भी कुछ लोगों ने वो बैलेट पेपर देखा और इसीलिए वो वोट रद्द किया गया। अब उसी मामले को उजागर करते हुए कांग्रेस ये मांग कर रही है कि उसी मामले के आधार पर 2 कांग्रेस विधायकों का, गुजरात से कांग्रेस विधायकों के वोट खारिज किए जाएं। दूसरी मुलाकात है कांग्रेस नेताओं की ये चुनाव आयोग से। इससे पहले बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और सीधे सीधे अपनी बात रखते हुए कहा कि इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और उसको रद्द नहीं किया जा सकता। और आपको यह भी बता दें कि अरुण जेटली दोबारा चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं, यानी चुनाव आयोग से मुलाकात का जो ये दौर है ये अभी बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में हैं। बीजेपी की मांग कि ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे अब रद्द नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की मांग ये कि 2 विधायकों के वोट खारिज किए जाएं, क्योंकि जिन लोगों को इजाजत है उनके अलावा भी इस मत को लोगों ने देखा और इसका उनके पास वीडियो प्रूफ है, वीडियोग्राफी की गई है। ये बात भी पी चिदम्बरम ने कही कि जो वीडियो प्रूफ है वो भी उनके पास है और ऐसे में ये मत खारिज किए जाए। बड़ी लड़ाई, अहमद पटेल राज्यसभा का रास्ता तय करेंगे कि नहीं, इसको लेकर यह बड़ी लड़ाई बन चुकी है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, अहमद पटेल राज्यसभा का रास्ता तय करें कि नहीं, इसको लेकर अब ये लड़ाई बड़ी हो गई है और कांग्रेस के नेता तो अब जून 2016 के मामले का उदाहरण भी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग उसको ध्यान में रखते हुए अब अपना फैसला ले। जी हाँ, दोनों ही पक्षों की तरफ से तर्कों का दौर जारी है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस का डेलीगेशन निकल के गया है, जब बीजेपी का डेलीगेशन दोबारा चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है, जिसमें अरुण जेटली, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनके एमओएस पीपी चौधरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान जैसा एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है सरकार की तरफ से, सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से, और वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपना पक्ष रख रहे हैं। बीजेपी की दलील ये है क्योंकि 9:20 के लगभग इन दोनों विधायकों ने वोट डाला था और उस समय किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, ऑब्जर्वर ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ जो बीजेपी अध्यक्ष उस समय जिन पर आरोप लग रहा है कि उनको दिखाया गया वो लगभग 20 फीट की दूरी पर बैठे थे, ये तर्क दिया जा रहा है। इन सारे तर्कों के सहारे बीजेपी की मांग है चुनाव आयोग से कि काउंटिंग जल्द से जल्द शुरू हो, जबकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पूर्व के उदाहरण का हवाला देते हुए कांग्रेस ये मांग कर रही है कि उन दोनों विधायकों के जो उनके अपने विधायक हैं उनके वोट खारिज कर दिया जाए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात का राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार से कशमकश भरा है और चुनाव आयोग के इतिहास में शायद इतने नाटकीय घटनाक्रम कम हुए होंगे जब देश की 2 प्रमुख पार्टियां इतना हाई डेलीगेशन इतने कम समय के अंतराल पे 2-3 बार पहुंच रहा हो। जी बिल्कुल। अहमदाबाद से निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय, इन 2 वोट के खारिज होने से कांग्रेस को किस तरह से फायदा पहुंचेगा, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए सुचारिता, इसमें साफ तौर पे जो इलेक्शन का मैथमेटिक्स है राज्यसभा का वो वर्क कर रहा है। आप समझ लीजिए कि अभी जो रिक्वायर्ड कोटा है वो करीब 44+1 वोट का है और यदि अगर ये 2 वोट खारिज हो जाते हैं तो जो गिनती होगी उस हिसाब से 1 वोट और कम हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्होंने करीब 44 में से 43 एमएलए 43 एमएलएज ने कांग्रेस को साफ तौर पे वोट किया है और कांग्रेस अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जेडीयू या एनसीपी में से उसे 1 वोट जरूर मिला है। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि उसके जो कैंडिडेट हैं अहमद पटेल, जिनको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है पार्टी ने, वो प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पे जीत जाएं। ये कांग्रेस को एक आस बंदी नजर आती है इस पूरी प्रक्रिया के जरिए, यदि ये दोनों वोट कैंसिल हो जाते हैं तो।
और बीजेपी को सीधे सीधे इसका नुकसान ये होगा कि बीजेपी के जो तीसरे कैंडिडेट हैं उन्हें जितने वोट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और कांग्रेस को जितने वोट लेने हैं वो शायद उस आंकड़े तक पहुंच जाएगी। ये साफ तौर पर एक पिक्चर उभरती नजर आ रही है, और इस उम्मीद के सहारे ही कांग्रेस इस पूरे मामले पे लगातार बनी हुई है, जोर दे रही है कि किसी भी तरह ये दोनों वोट रिजेक्ट हों। बीजेपी का ये कहना है कि यदि दोनों वोट रिजेक्ट हो भी जाते हैं, हमारी जो नेताओं से बात हुई तब भी कांग्रेस के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव नहीं है, कांग्रेस ये इलेक्शन हारेगी, ऐसा बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अरुण जेटली मिलने पहुंचे हैं चुनाव आयोग से। एक बार पहले बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है, अब ये दूसरा राउंड है। अरुण जेटली एक बार फिर मिलने पहुंचे हैं चुनाव आयोग से। कांग्रेस के नेता दो बार मिल चुके हैं, 2 बार मुलाकातें चुनाव आयोग से हो चुकी हैं। गणित थोड़ा हमारे दर्शकों को समझना होगा। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 176 विधायकों ने वोट किया है, इसलिए 45 वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अगर ये 2 वोट विधायकों के कैंसिल हो जाते हैं तो वो गणित थोड़ा बदल जाता है, फिर 44 वोटों की जरूरत पड़ेगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, 44 और 45, 1 वोट के फेर में ये तमाम रस्साकशी जो हम आज देख रहे हैं, कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि जेडीयू या एनसीपी का वोट उसके खाते में जरूर गया है। जी हाँ, थोड़ा सा इस इक्वेशन को और आसानी से समझते हैं दर्शकों के लिए कि जैसे 176 विधायकों ने वोट डाले, 4 कैंडिडेट हैं, 176 को अगर 4 से भाग देंगे तो 44 मत आते हैं, उनमें 1 जोड़ दिया जाए तो जो मौजूदा आंकड़ा है उसके हिसाब से 45 वोट आने चाहिए, जो शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनके पास अभी ये नंबर नहीं है। और अगर इन 2 विधायकों के वोट खारिज हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में नंबर क्योंकि नीचे आ जाएगा तो फिर वो आसानी से 44 का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन एक दूसरी समस्या कांग्रेस के लिए ये होगी कि अगर इसके बावजूद कोई नोटा की स्थिति आती है या किसी और विधायक का जब काउंटिंग शुरू होगी तो कांग्रेस से किसी विधायक का वोट खारिज होता है, अवैध होता है, वैसी स्थिति में जब सेकंड प्रेफरेंशियल वोट की नंबर आएगी वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। और ये वो चिंता है जो कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि 2 विधायकों के वोट खारिज हो जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, और उसके आधार पर अहमद पटेल का राज्यसभा का रास्ता साफ हो। ये कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है एक तरह से। आप अंदाजा लगाइए कि जिस प्रकार का डेलीगेशन चुनाव आयोग में आया है, बीजेपी के तमाम डेलीगेशन चुनाव आयोग आते रहते हैं तमाम गंभीर मसलों पे, लेकिन ऐसा डेलीगेशन कम से कम हाल को वर्षों में तो नहीं आता जब इतने हाई प्रोफाइल लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनमें एक से बढ़कर एक वकील हैं जो इस थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के नेता थोड़ी देर पहले जब चुनाव आयोग से मिलकर पहुंचे तो क्या कहा। कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए अरुण जेटली जी आए, हम सभी आए, हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि 2 किसके थे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो खुल सकता है। बीजेपी के नेताओं की आपने बात सुनी। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के 2 एमएलए के सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी कंप्लेन की है कि उन्होंने भी जो वोट सीक्रेट रखना चाहिए और अपने ऑथोराइज एजेंट के सिवा और किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे 2 एमएलए ने भी ये ऐसी ही तरफ ये वोट और लोगों को बताया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने मॉर्निंग में 9:30 बजे अपनी कंप्लेन
वीडियोग्राफी के सामने रिकॉर्ड करवाई और उनके बाद हमने 2 घंटे में टाइप करके अपनी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 5:30 बजे, जबकि 4 बजे वोटिंग पूरा हो गया, उनके बाद ये कंप्लेन लिखी दी है, इसलिए कि वो मीडिया को, जनता को मिसलीड कर सके। तो राज्यसभा चुनाव का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। अहमद पटेल राज्यसभा जाएंगे या नहीं, ये मामला अब अधर में लटका हुआ है। हमारे साथ अहमदाबाद से निर्णय कपूर हैं, दिल्ली से देवेंद्र पराशर बने हुए हैं। इसी बड़ी खबर पर आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।